وعدہ یہ تھا کہ معصوم بچوں کے ہاتھوں میں قلم تھمائیں گے اور کھانے پر کتابوں کی بستوں کا بوجھ دیں گے. یہی باتیں تھیں جس کی وجہ سے عوام نے قبول کیا اور آج سے 25 برس پہلے مجھے کامیابی دی. اس فرسٹ ٹرم میں ہی ہم نے ہمارے ایجوکیشن کی طرف کام کرنا شروع کیا تھا. جب چندرائن گٹا کا بہت سارا حصہ آج یاقوتپورے میں ہے تو وہاں سے ہم نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا, اسکول کا آغاز کیا. اب آج 14 بلڈنگز ہے, آلموسٹ 9 اسکولز ہے, اور پھر نیکسٹ فیو ایئرز آئی تھنک مور 3 schools are under construction. 15,000 students are studying. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ سے فنڈڈ نہیں ہیں, نہ ہی MIM پارٹی سے فنڈڈ ہے, بلکہ یہ میرے پرسنل ہے. میں اور میری فیملی اس کو چلاتے ہیں. اگر ہم بات کریں سر پالیٹکس کی, یہ تو آپ کے سوشل ورک ہو گئے, کتنا ڈفرینٹ ہے آپ کے والد بھی پالیٹکس میں رہے, آپ کس ٹائم میں ہیں, کتنا ڈفرینٹ ہے اس طرح کا پالیٹکس ابھی کا پالیٹکس, اور کیا لگتا ہے کیا ہوگا تلنگانہ میں؟ کافی گرما گرمی ہے, کانگریس دم بھر رہی ہے, BJP دم بھر رہی ہے, آپ تو ہیں ہی. دیکھیے پالیٹکس فادر نے جو کی تھی وہی پالیٹکس کو ہم بھی کر رہے ہیں. میں فادر اس وقت ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو بنائے تھے, پروفیشنل کالجز, ہاسپٹل, اور آج ہم بنیادی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں. اور الیکشن میں تو ہر کوئی دعوے کرتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جہاں جہاں MIM لڑ رہی ہے وہاں سے MIM کامیاب ہوگی. اور ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ اور ہماری پارٹی نے یہی کہا ہے کہ MIM کو ووٹ دے جہاں پہ MIM ہے, اور باقی جگہ BRS کو. تو مجھے امید ہے کہ MIM بھی جیتے گی جہاں جہاں لڑ رہی ہے, اور BRS بھی اکثریت حاصل کرے گی. اگر ہم بات کریں کانگریس کی سر, کانگریس لگاتار MIM کے مکھیا ہیں, صدر ہیں, اسدالدین اویسی, ان کے اوپر ٹارگیٹ کرتے ہیں, آپ کے اوپر بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں. کانگریس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ریونت ریڈی, وہ خاص طور پہ آپ لوگوں کے اوپر یہ آروپ لگاتے ہیں کہ آپ لوگ ایک میچ فکسنگ کر رکھی ہے BJP کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے دوسرے راجیوں میں جہاں کانگریس کو ہرانے کا کام کرتے ہیں, یہاں پر افیکٹولی آپ BJP سے فائٹ نہیں کرتے. دیکھیے ہم ہر وقت کرتے رہے ہیں. جس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا تہیہ ہوا تھا تو اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ حیدرآباد میں MIM کی ضرورت نہیں ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے آپ اسٹرگل نہ کریں, بلکہ یہی ریونت ریڈی کے جو اور راہل گاندھی کے نانا تھے جواہر لال نہرو نے, انہوں نے بھی کئی مرتبہ اپنے لوگوں کو بھیجا اور میرے گرینڈ فادر عبدالواحد اویسی سے کہا کہ یہ کاغذ ہے, اس پہ دستخط کر دیجیے اور کہہ دیے کہ نان پولیٹیکل پارٹی رہے گی MIM, تو ہم آپ کو ریلیز کر دیں گے. وہ 11.5 مہینے جیل میں تھے اور ہم نے جدوجہد کی اس کے بعد, اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پروفیشنل کالجز ہے, ہاسپٹلز ہے, ہمارے اسکول ہے, MP ہے, MLAs ہیں. تو اگر آج ہم پولیٹیکل اسٹرگل نہیں کریں گے اور اگر آج ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر پارٹی سپر کے رہ جائے گی. مائنورٹی کی پالیٹکس کی بات ہوتی ہے سر دیش بھر میں, ہم دیکھتے ہیں کہ اسدالدین اویسی اگر کل انفیکٹ وہ راجستھان میں بھی تھے, بار بار مائنورٹی کی یونٹی اور مائنورٹی کے ہتوں پہ بات کرنے والی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی ہیں. ان کے اسپیچز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ووٹ بینک کی طرح مائنورٹی کو یوز کیا ہے. اس سے کتنے آپ اتفاق رکھتے ہیں, کتنا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں مائنورٹی کی ایک ووٹ بینک کی پالیٹکس کی طرح تلنگانہ میں یا دیش کے انیہ حصوں میں بھی یوز کیا گیا ہے یا یوز کیا جاتا رہا ہے, اور ایک افیکٹو ان کو لیڈرشپ MIM دے سکتی ہے اس راجیہ میں الگ الگ راجیوں میں؟ دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد سے لے کر آج تک سب سے زیادہ اقتدار پر اگر کوئی جماعت رہی ہے تو وہ کانگریس رہی, یا نہرو کے نام پر یا اندرا کے نام پر یا پھر بعد میں نرسمہا راؤ ہو یا منموہن سنگھ ہو. لیکن ان کی عادت رہی ہے کہ اگر آج مسلمانوں کی جو حالات ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور ہر وقت جب بھی کانگریس کمزور ہوتی ہے تو اس کی تاریخ رہی ہے کہ وہ فسادات کروائی. فسادات کے بعد, تباہی کے بعد مسلمان جب غصے میں آتے ہیں تو کمیشنز بنائیں, اور مسلمانوں کی پسماندگی, مسلمانوں کی جو
पिछड़ापन है, इसके ऊपर मुसलमान गुस्से में आया, कमेटीज बनाई, कभी गुजरात कमेटी बनाई, कभी सच्चर कमेटी बनाई, कभी रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनाई, तो कभी कमेटी बना के खुश किया, तो फिसादात में तबाही और बर्बादी करवा कर कमीशन बनाकर किया, श्री कृष्णा कमीशन हो या दूसरे कमीशन हो। और उसके बाद में भी मुसलमान जब नाराज रहा तो उन्होंने फिर रमजान में इफ्तार की दावत कर दी या अजमेर शरीफ के लिए चादर भेज दी। उन्होंने तो मुसलमानों का इस्तेमाल किया है वोट बैंक की तरह, और सारे रिपोर्ट सामने है कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे है, सबसे कमजोर है। और आज अगर हम देखते हैं कि तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से लिटरेसी रेट यहाँ पे स्टेट की क्या है और मुस्लिम्स की क्या है, तो मुस्लिम्स लिटरेसी रेट इज हायर देन द स्टेट लिटरेसी रेट। So this is the achievement of MIM, and I think because of the presence of MIM, now everybody is forced to say that कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे. The question arises is that कि 11% minorities are there in Rajasthan. Here, and if you have to calculate, the total number is around 62 lakhs. Here, the Muslim percentage is 12%, or population number में देखे तो 50 lakhs. There, the budget is 290 crores. Here, the budget is 2,200 crores. Now, if the Congress and Revant says that we will make it 5,000, thank you. It is the presence of MIM, Asad Owaisi and Akbar Owaisi, that they are forced to say that we will make it 5,000. Why are they not doing the same in Rajasthan and other states where they have ruled and they are ruling? मेरे दो आखिरी सवाल सर, बीजेपी कहती रही है जब हम कैंपेन देखते हैं, अभी नहीं पहले से, कि आपके हाथ में कार की स्टीयरिंग रही है, आप एक्चुअली जो है ना पब्लिक पीछे से केसीआर की कार को ड्राइव करके सरकार आप चलाते हैं, इस जो एलिगेशन है इसको कैसे आप? ये एलिगेशन ही है, आप खुद कह रहे हैं एलिगेशन है, तो जिसको जो चाहे वो बोल सकते हैं, जिसकी गाड़ी वही चलाएगा, जो ड्राइवर है वही चलाएगा गाड़ी। हम हमारी पार्टी चला रहे हैं, वो उनकी पार्टी चला रहे हैं। अब आवाम के हाथों में से हाथ निकल गया है, उस हाथ की फिक्र करनी चाहिए उनको। मेरा आखिरी सवाल सर, आपके साथ कैंपेन है नूरुद्दीन ओवैसी, आपके बेटे हैं डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, डॉक्टरी करके आए हैं और अभी गलियों में हैदराबाद की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में हम उनको भी देखेंगे आपके साथ पॉलिटिक्स करते हुए हैदराबाद में? देखिए, सबसे पहली अहम बात यह है कि आप सब जानते हैं कि मेरी सेहत सही नहीं रहती, तो एज अ डॉक्टर एंड एज अ सन ही इज देयर बिसाइड मी टू टेक केयर ऑफ मी इफ रिक्वायर्ड, इफ नीडेड। दूसरा, आपने सवाल किया उनके पॉलिटिकल फ्यूचर के ताल्लुक से, ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त ही फैसला करेगा। काबिल बनेंगे, आवाम चाहेगी, और उसके बाद में वक्त ही जवाब दे सकेगा। मैं अभी तो नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा से 5 बार विधायक रहे और छठी बार मैदान में उतरे अकबरुद्दीन ओवैसी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। सबसे पहले ये कि क्या कारण है कि यहाँ पर लोग जो आपको इतना पसंद करते हैं और दोबारा जो है आपको लगता है कि यहाँ से आपकी जीत होगी? दोबारा नहीं, छठवीं मरतबा। जी। और इसकी वजह यही है कि हमने काम किया, मेरे पार्टी ने कामयाबी के साथ आवाम के खिदमत किए, और मैं भी मुसलसल आवाम के दरमियान में रहता हूँ, आवाम के दुख दर्द में उनके साथ रहता हूँ, और आवाम की जरूरत को, आवाम की नफ्स को पकड़ कर काम करता हूँ, इसलिए बार बार जीता हूँ। सर, ओल्ड हैदराबाद में और लगातार आपके जितने भी सीट्स है वहाँ पर हम जब पहुँच रहे थे, लोग जो आपके काम की काफी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो कोविड के वक्त के काम हो या फिर एजुकेशन को लेकर हो, मेडिकल सुविधाएं हो, किस तरह से सब कर पाते हैं और कौन, मतलब क्या ये सरकार के साथ मिलकर है या आप खुद से कर रहे हैं सर? नहीं, ये सरकार के साथ नहीं है, ना ही जो है सो इसमें MIM का कोई है, ये मेरा जाती है और पर्सनल है। कोविड में भी हमने करीब 12 करोड़ के सरफे से पूरे शहर हैदराबाद में अनाज तकसीम किया था, और गैस सिलेंडर दे दिए थे, और मेडिकल कैंप्स के जरिए भी हमने लोगों की मदद की थी, फ्री दवाइयाँ दी थी, करीब 1 करोड़ की 33 कैंप्स करवाए थे हमने।
फिर उसके बाद में फ्लड आया तो फ्लड में भी हमने आवाम के दरमियान में रहकर काम किया। जो सारे लोगों के घर मुतासर हुए थे उनकी हमने हमारी टीम के जरिए उनके रेफ्रिजरेटर्स को रिपेयर करवाया, गाड़ियों को रिपेयर करवाया। उबर ओला के जो उनकी जो गाड़ियां थी वो खराब हो गई थी, उसको हमने किया। कोविड के टाइम पर हमने उपवास की मदद की, स्कूल बंद थे, टीचर्स को भी हमने उनकी भी मदद की, और वीडियोग्राफर शादी खाने भी बंद थे तो उनकी भी हमने मदद की। तो हमने बहुत काम किया है और काम कर रहे हैं। और ये एजुकेशन की तरफ हमारा जो काम है इसमें 15,000 चिल्ड्रन अभी पढ़ रहे हैं। तो ये भी मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनल ट्रस्ट है, उसके जरिए अपने जेब से चला रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए एक इंसान की सोच को बदला जा सकता है, उसकी फिक्र को बदला जा सकता है, और उसकी ज़िंदगी की नाकामियों को कामयाबी में बदला जा सकता है, और अंधेरों को हटाकर नए उजालों को लाया जा सकता है। सर आपका काम बेशक जो है लोग काफी पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी ओर आपके बयानों को लेकर जो राजनीति भी खूब होती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम हक बयान करते हैं और इज़हार हक से हम कभी मुंह नहीं मोड़ते। सर तो लोगों को हमारा हक बयानी शायद पसंद ना आए तो वो उनका प्रॉब्लम है। हम तो जो सही है, जो हक है, वो बयान करते हैं। सर इस बार तेलंगाना में माइनॉरिटी वोट बैंक को लेकर मानो एक होड़ सी मची है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि माइनॉरिटी हमारे साथ है, ओवैसी ब्रदर्स ने सिर्फ इनका इस्तेमाल किया है, उन्हें आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, मुसलमानों को धोखा दिया है, मुसलमानों की पसमानदगी पर कभी काम नहीं किया है, और मुसलमानों को फिसादात 55,000 फिसादात के जरिए तबाह व बर्बाद किया है। और फिसादात के गुस्से को थमाने के लिए इंक्वायरी कमीशंस बिठाए और उससे भी इंसाफ नहीं किया। चाहे मलियाबाद हो, रोड किला हो, हाशिमपुरा हो, गुजरात हो, अजमेर हो, हिंदुस्तान में 55,000 फिसादात देने वालों का नाम कांग्रेस है। और मुसलमानों की पसमानदगी पर गुजराल कमेटी बनाई, कभी सच्चर कमेटी बनाई, कभी रंगनाथ मिश्रा, कभी कुंडू कमेटी, तो फिर भी उसके बाद मुसलमान सबसे पीछे पिछड़ा हुआ है। और अगर आज बीजेपी अगर ताकतवर है तो ये खुद कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी की निशानी है, क्योंकि नाकामी की वजह से आज बीजेपी ताकतवर बनकर मुसलमानों पर जो भी जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, उसका जिम्मेदार कांग्रेस है। सर आखिरी 2 सवाल लूंगी। इन दिनों आपके जो बेटे हैं डॉक्टर नूरुद्दीन, वो काफी चर्चे में है, क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में जल्द ही उन्हें हम देखेंगे? नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त ही फैसला करेगा। ये मीडिया का क्रिएशन था, अखबारात में लिखा गया। ही इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर, नॉट ओनली अ क्वालिफाइड डॉक्टर बट ही इज completed his MD and now he is pursuing his MRCP Part 2 and FRCA. So he is well focused on his education and building his future career as a doctor, qualified doctor. And about politics, I think time will decide. सर इस बार जो है बी टीम लगातार आपको कहा जाता है आपकी पार्टी को कि बीजेपी की बी टीम है। इस बार रैली में भी जो ये आरोप बार बार लग रहा है कि मोदी और बीजेपी से ज्यादा राहुल गांधी पर इसलिए वार किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बिहाइंड द कर्टेन एक तरह से बीजेपी के साथ है ये पार्टी। इस आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस आरोपों के ताल्लुक से मेरे पार्टी प्रेसिडेंट ने बार बार कहा है, मैं फिर से यही कहूंगा कि उनका इख्तियार है, वो जो चाहे बोल सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हाथों हाथ हमको लिया, हमारी बात को कबूल किया और हमारा साथ दिया। उसका नतीजा ये है कि रियासत तेलंगाना में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत है, और हमारी ताकत को देखते हुए वो मजबूर है कि रोजाना बगैर हमारा नाम लिए कि वो अपनी कैंपेन नहीं कर सकते। मामू की सरकार इस बार BRS की सरकार जरूर होगी। तो देखिए